Hello student, myself Pramila Yadav, TGT Maths, JNV Mahendragarh, Haryana, and today we will study Introduction to Trigonometry for class 10th. Learning outcomes. What we will study today in today's topic. To understand the meaning of trigonometry, means what is trigonometry, use of trigonometry in our daily life, and to understand the trigonometric ratios. First of all, use of trigonometric ratios in daily life. Actually, trigonometry is the branch of mathematics which deals with height and distances. Means with the help of trigonometry we can measure the heights and also we can measure the distances. Look at the first diagram. In this diagram one island is shown and we can measure the distance of this island from the beach with the help of trigonometry. In the second diagram one building is shown and we can measure the height of this building. In the third diagram Taj Mahal is shown and we can also measure the height of the Taj Mahal with the help of trigonometry. In the with the help of trigonometry we can measure the heights and distances of any objects. Meaning of trigonometry. The word trigonometry is derived from the Greek language. The tri means three, gono means sides, and metry means measure. Means to measure the three sides. Means if we are talking about three side, means we are talking about triangle. And which type of triangle we are talking about? We are talking about right angled triangle. If we look at in the previous diagram, in this diagram see the height of this building we have to measure, and the triangle formed here is a right angle triangle. Means in trigonometry we will deal only with the right angle triangles. And to study the relationship between the sides and angles of a triangle, and we will study some relations between the sides and angles, and we give the name to them as trigonometric ratios. Right angle triangle. Since we are studying about right angle triangle, so we must know about the sides of the right angle triangles. Now in the first diagram one right angle triangle is given ABC. This triangle is given ABC, and in this triangle the at angle A we have marked an angle theta. We can give any name to angle theta. ये angles के symbols हैं, हम कोई भी symbol angle को दे सकते हैं, थीटा बीटा गामा अल्फा इस तरह से. और यहाँ एंगल A पे जो एंगल थीटा मार्क किया है इसका मतलब क्या है कि ये गिवन एंगल है, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. और इसके साथ में जो साइड है वो क्या कहलाएगी, हमारी एडजेसेंट साइड, और फिर इसको हम क्या कहेंगे, बेस. एडजेसेंट साइड बोलेंगे या बेस बोलेंगे. और जो एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है उसे अपोजिट साइड कहेंगे, या फिर हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर. दिस इज परपेंडिकुलर. एंड द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. In the second case, the angle A and angle C both are acute angles, and now angle C is given. Angle C is given. Suppose this angle is given theta. So the side at which the angle C is there, this is called adjacent side. Means BC is the adjacent side, or we will call it as base. और एंगल C के अपोजिट में जो साइड है दैट मीन्स AB साइड, दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर. एंड एंगल B के अपोजिट में जो साइड है दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज. मीन्स जो दो साइड्स हमारी राइट एंगल बनाती हैं उनमें से एक साइड एडजेसेंट साइड होती है और एक क्या होती है, अपोजिट साइड. जिस साइड पर एंगल गिवन है उस साइड को हम एडजेसेंट साइड लेंगे, और जो उसके अपोजिट में जो साइड है उसे हम क्या कहेंगे, अपोजिट साइड. और एडजेसेंट साइड को और क्या कह सकते हैं हम, बेस. एंड द अपोजिट side is also called the perpendicular. 6 trigonometric functions in relation to right angle triangle. अब right angle triangle में 3 sides हो गई, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. इन तीनों साइड्स के ही हमें रेशोज़ फाइंड आउट करने हैं. इन्हीं रेशोज़ को हम कुछ स्पेशल नाम देते हैं और इन रेशोज़ को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़. दीज रेशोज़ आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़. मीन्स ट्राइंगल की साइड्स के रेशो निकाले जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन एंगल, किसी गिवन एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग में, और उन रेशोज़ को हम नाम दे देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के. फिर उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में स्पेशल नेम्स हैं जो कि हमें लर्न करने हैं. जैसे पहला रेशो हमने लिखा है SIN, इसको हम पढ़ते हैं साइन. एक्चुअली में इसका फुल नेम है SINE, साइन. इसको हम शॉर्ट में SIN लिखते हैं. साइन A मीन्स वी आर टेकिंग एंगल A एज द गिवन एंगल. मीन्स अगर एंगल A गिवन है तो एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, AC,
और परपेंडिकुलर साइड मीन्स अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, BC, और हाइपोटेन्यूज जो है वो राइट एंगल के अपोजिट में यानी कि AB। तो साइन जो है वो इन तीनों में से कौन सी साइड्स का रेशो होता है, द साइन इज द रेशो ऑफ द अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ है BC, हाइपोटेन्यूज है AB। BC को हमने यहाँ A से लिखा है और हाइपोटेन्यूज को C से मार्क किया है, तो साइन जो यहाँ रेशो हो गया हमारा A/C। सेकेंड, कोसाइन, COSINE, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। इट इज द रेशो ऑफ द एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड मीन्स बेस, तो एडजेसेंट साइड है यहाँ AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, तो AC अपॉन AB, और वी कैन से B/C। थर्ड रेशो है टेंजेंट, TANGENT, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं tan, TAN, tan A। tan A इट इज द रेशो ऑफ अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, मीन्स वी कैन से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स A/B। सो ये तीन रेशोज हैं। फर्स्ट रेशो क्या था हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन A। सेकेंड रेशो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस A। थर्ड रेशो है परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स टेंजेंट ऑफ A। अब ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के अलावा अलग से तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और हैं जो कि इन्हीं के रेसिप्रोकल है। मीन्स अगर हमने साइन लिया था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। इस रेशो को हम नाम देते हैं कॉसिकेंट, COSECANT, कॉसिकेंट ऑफ एंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ ले रहे हैं, तो कॉसिकेंट ऑफ A, इसको शॉर्ट में हम CSC या COSEC, कॉसेक भी लिख सकते हैं। तो कॉसिकेंट ऑफ A इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। Next is secant A. It is the reciprocal of cos A. Secant, SECANT, शॉर्ट में हम इसको SEC, सेक भी लिखते हैं। secant A cos A का रेसिप्रोकल है, मीन्स हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। एंड थर्ड रेशो इज कोटेंजेंट। टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट भी पढ़ते हैं हम। तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, टेंजेंट A का रेसिप्रोकल है, मीन्स इट विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पर एक और राइट एंगल ट्राइंगल हमने शो की है। अब यहाँ हमने जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है वहाँ हमने एक एंगल मार्क किया है थीटा, मीन्स ये गिवन एंगल है। तो ये एडजेसेंट साइड, इसके जिस साइड पर ये एंगल है उसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड। इसके अपोजिट में अपोजिट साइड मीन्स परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, बेस। और थर्ड साइड जो राइट एंगल के अपोजिट में है वो क्या होगी, हमारी हाइपोटेन्यूज। तो ये 6 रेशोज अभी हमने दोबारा से इनको रिवाइज किया है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉसिकेंट थीटा इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सीकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। अब हमारे पास प्रॉब्लम किस फॉर्म में आती है, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ रहे हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम, यहाँ एक प्रॉब्लम शो की है। इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज अ राइट एंगल, एंगल C राइट एंगल है। यहाँ डायग्राम में देखो ट्राइंगल ABC शोन है जिसमें एंगल C क्या है, राइट एंगल, एंड साइन A is 5/13. This ratio is given sin A, means we are taking angle A is given, this is acute angle A is given and ratio is 5/13. if angle A is given means adjacent side कौन सी हो जाएगी, AC, adjacent side क्या हो जाएगी, AC, और इसको हम बेस भी कह सकते हैं, और परपेंडिकुलर साइड इसके अपोजिट में यानी कि BC मीन्स अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर BC, एंड हाइपोटेन्यूज जो है वो राइट एंगल के अपोजिट में AB होगा। अब साइन हमें लर्न होना चाहिए, हमने रेशो क्या याद किया था, साइन होता है रेशो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारा BC है, एंगल A गिवन है तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, तो BC साइड वी कैन टेक इट एज 5 यूनिट्स एंड AB एज 13 यूनिट्स। सो नाउ थर्ड साइड AC is not given, but
By Pythagoras theorem we can find out the third side. Pythagoras theorem की हेल्प से हम थर्ड साइड कैलकुलेट कर सकते हैं. By Pythagoras theorem का रिजल्ट क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो हाइपोटेन्यूज इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए सी बेस है तो उसको हमने बी से मार्क किया है, बी स्क्वायर. So 5 square is 25, 13 square is 169. So b square will be 169 minus 25, 144, or base will be square root of 144, that is 12 units. So base is 12 units. Now cos A. Cos A is the ratio of base upon hypotenuse. So 12 by 13. Cot A, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो 12 अपॉन 5. साइन बी, अब यहाँ पर देखिए कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल बी है, मीन्स अगर हम एंगल बी ले रहे हैं तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी? बी सी, और अपोजिट साइड हो जाएगी ए सी. मीन्स बेस अब 5 यूनिट से है और परपेंडिकुलर 12 यूनिट्स है, तो साइन जो है वो रेशो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मीन्स 12 by 13. Now one more problem is for you. गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 4. सीकेंट थीटा हमें गिवन है कि वो 4 के इक्वल है. फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. सीकेंट थीटा गिवन है, बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया? हमने पिछले क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल बनाई थी. यहाँ जैसे साइन ए अगर हमें गिवन था 5 by 13, तो सबसे पहले हमने क्या किया? राइट एंगल ट्राइंगल को बनाया. तो यहाँ पे भी यही करना है, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे. ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है. सीकेंट थीटा गिवन है, इसलिए हमने बेस एंगल जो है वो थीटा लिया है. अब सीकेंट थीटा हमें रेशो पता होना चाहिए किसका होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. It is hypotenuse upon base. So secant theta is equal to 4, and 4 can be written as 4 upon 1. So we can take hypotenuse as 4 units and base as 1 unit. So hypotenuse is 4 and base is 1. Now we can find out the perpendicular again by Pythagoras theorem. Hypotenuse square minus base square is equal to perpendicular square. So 4 square 16 minus 1 is 15. So perpendicular square is 15. So we can say perpendicular is square root of 15. Now sin theta, first of all we will find out the value of sin theta. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse, so square root 15 upon 4. Cos theta, it is base upon hypotenuse, so it is 1 upon 4. Then tan theta, it is perpendicular by base, so square root 15 upon 1 यानी कि square root 15. नेक्स्ट इज cosecant थीटा. cosecant थीटा हमें पता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 अपॉन स्क्वायर रूट 15. सीकेंट थीटा ये रेसिप्रोकल है cos थीटा का, तो सो इट इज इक्वल टू 4. एंड कोट थीटा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, so it will be equal to 1 upon square root 15. means if one ratio is given we can find out the other trigonometric ratios. So in today's topic we will study only the trigonometric ratios, and in the next chapter we further continuation we will study their complementary ratios and the value of the ratios at the other angles also. Thank you. Have a nice day.